Hello children, welcome to my lecture. Today we are going to do English Pro Section 1.8 Voyaging Towards Excellent. Already I explained children the meaning of voyaging towards excellent. Voyaging means traveling toward the excellent. So this chapter is written by Achyut Godbole. This is the autobiography of Achyut Godbole and penned by also Achyut Godbole. So last lecture children, we already taken information regarding the Achyut Godbole and some part of chapter also we studied. So let's start the chapter. So in last lecture children, we taken information regarding Achyut Godbole, who was belongs to the lower middle class family, and how the interest regarding literature and music is generated in Achyut Godbole's mind, and how he was brilliant, and how their family stay in a only 300 square feet house. See children, today we are giving excuse कि हमको प्राइवेसी नहीं मिल रहा, हमको ऐसा इन्वायरमेंट नहीं मिल रहा, पढ़े हरदम डिस्टर्ब होता है, हमारा घर छोटा है. बट अच्युत गोडबोले ही स्टेड इन ओनली 300 स्क्वायर फीट हाउस, और उस हाउस में हमेशा म्यूजिशियंस का, लिटरेचर लोगों का आना जाना रहता था. उसके बावजूद अच्युत गोडबोले पढ़ के इतने आगे निकले, और उन्होंने कहा इन सब लोगों के आने से उन्हें कोई डिस्टर्बेंस नहीं हुआ. इवन he got more knowledge regarding literature and music, and because of the conversation of the musician and literature persons regarding some high quality of literature, तो उन लोगों के बारे में शेक्सपियर जैसे इन सब के बारे में जब वो आके बात करते थे तो वो जो है उनका कन्वर्सेशन नाइट में चालू होता था और फिनिश होता था अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह जाके ख़त्म होती थी. इन सब बातों को अच्युत गोडबोले बचपन में समझ तो नहीं पाते थे, बट वो ये सब बातें सुनकर उनके मन में म्यूजिक और लिटरेचर के लिए क्या हो गया, इंटरेस्ट क्रिएट हुआ. उन्हें उसका ग्रामर तो नहीं मालूम था, लेकिन उन चीज़ों में उनका मन बहुत अच्छे से लगने लगा. एंड आफ्टरवर्ड्स ही गिवन इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग हिज स्टडी. He told he had interest in maths and science also. When he was in 7th standard, he started solving the 9th standard problems, and this problem solving activity helped the Achyut Godbole to appear the IIT entrance exam, that we can say JEE entrance exam, because in JEE entrance exam we need what? Ability to think. Not only we need the ability to think, we need the think about logical, we have to solve the quick and rapidly the problems we get in exam, right? So now we will start from here. I think we completed till here. See, till here we completed. In IIT exam is what? It is completely based on your problem solving ability, right? And the ability to think not only logically but quickly and rapidly is needed to crack the IIT exam. Now see, I scored 100% marks in mathematics in almost all the examination that I appeared for from my first tender until IIT. He says he always scored, means हमेशा उसे एग्ज़ाम में कितना मिलता था, हर क्लास में कोई भी एग्ज़ाम हो मैथ्स में उन्हें 100 of 100 मार्क्स मिलते थे, राइट. बेरिंग only a few times, बेरिंग मीन्स कुछ समय को छोड़ करके, मीन्स sometimes only he get less than 100, but all time he got what? 100 out of 100 marks in maths. I stood 16th in SSC board. At that time this examination was for the whole of Maharashtra including Nagpur, and I stood first in university in all subject put together. He told what? पता रहे कि SSC जो एग्ज़ाम थी at that time when अच्युत गोडबोले given the SSC एग्ज़ाम, महाराष्ट्र में सिर्फ एक ही होती थी, नागपुर यूनिवर्सिटी को इंक्लूड करके एक ही एग्ज़ाम होता था महाराष्ट्र में. सो दैट टाइम इन SSC he stood 16th rank, and he stood in university all subject. Which university? In Nagpur University he stood what? First rank in all subject. Those days you could get an admission into IIT without the entrance test if you had secured the first rank in the university. और उन दिनों those days क्या होता था? The person who get the first rank in university, that person is not necessary to give the entrance exam.
राइट। देन JEE एग्ज़ाम उसे देने की कोई ज़रूरत नहीं होती थी, IIT एंट्रेंस एग्ज़ाम देने की उसे कोई ज़रूरत नहीं होती थी। विदाउट गिविंग द एंट्रेंस एग्ज़ाम द पर्सन हु सिक्योर्ड द फर्स्ट रैंक इन यूनिवर्सिटी ही गेट द ऑटोमेटिकली एडमिशन इन IIT. Therefore, I did not have to appear for entrance test to get the admission into IIT. But nobody in Solapur told me about it. क्या हो गया, अब ये भी फर्स्ट आए थे पूरी यूनिवर्सिटी में, तो इन्हें कोई ज़रूरत नहीं थी एग्ज़ाम देने की IIT की। बट उस समय जो है किसी ने इन्हें बताया ही नहीं, किसी ने मीन सोलापुर में किसी ने भी नहीं बताया है कि आप जो है फर्स्ट आए यूनिवर्सिटी में तो आपको ये एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं है। Far I doubt if anybody in Solapur even knew about this rule. Therefore, I appeared for the entrance examination and I secured a very good rank in the same. So क्या हो गया, इन्हें लगता है कि at that time no one in Solapur know about this condition कि जो भी यूनिवर्सिटी में फर्स्ट आएगा उसे IIT देने की ज़रूरत नहीं है। तो इन्हें डाउट है कि उस समय सोलापुर में किसी को ये बात मालूम ही नहीं थी। एंड देयरफॉर क्या हो गया, इन्होंने क्या किया, अपीयर किया, एंट्रेंस एग्ज़ाम में अपीयर किया एंड ही सिक्योर्ड अ वेरी गुड रैंक इन द सेम एग्ज़ाम। सेम एग्ज़ाम मीन्स इन JEE मीन्स IT एंट्रेंस एग्ज़ाम में इन्हें अच्छी रैंकिंग प्राप्त हुई। आई वॉज क्वाइट हैप्पी गेटिंग इन टू IIT बट माई जॉब वॉज शॉर्ट लाइव्ड। When he got admission in IIT, जब इन्हें एडमिशन मिला IIT में तो क्या थे, बहुत खुश थे, बहुत ही खुश थे। लेकिन ये खुशी उनकी कैसी थी, शॉर्ट टर्म की थी, शॉर्ट लाइव्ड। एट सोलापुर आई हैड नॉट सीन एनी बिल्डिंग विच वॉज मोर देन 3 स्टेयर। मुंबई हाउएवर वॉज फुल ऑफ स्काई क्रिपर्स। तो जब उन्होंने IIT में एडमिशन लिया तो उन्हें बहुत खुशी हुई, लेकिन यह खुशी उनकी क्या थी, बहुत क्षणिक थी, बहुत शॉर्ट टाइम थी। क्योंकि वो जब सोलापुर में थे तो उस समय उन्होंने क्या किया था, उन्होंने सिर्फ 3 स्टेयर की, मतलब 3 माले की, 3 स्टेयर की बिल्डिंग्स उन्होंने देखी थी। लेकिन मुंबई में जब वो आए तो वहाँ पर कैसी बिल्डिंग्स, फुल ऑफ स्काई क्रिपर्स, राइट, कि पूरी गगनचुंबी इमारतों को हम देखते हैं मुंबई में। At IIT, most of the students and professors used to converse in English, whereas my English was very poor. I had my entire education in Marathi. My spoken English was quite pathetic. Pathetic means already I written here weak, कमज़ोर थी मेरी English. Not only did I have a very weak vocabulary, but my pronunciation also was terrible and my construction of English sentence very awkward to say the least. So at IIT, जब उन्होंने एडमिशन लिया IIT में थे बहुत खुश थे। लेकिन इनकी खुशी क्या थी, इनकी खुशी थोड़े समय की थी। जब ये सोलापुर में रहते थे एट दैट टाइम ही सीन ओनली 3 स्टेयर बिल्डिंग, बट व्हेन ही रीच्ड इन मुंबई ही सा द स्काई क्रिपर्स, गगनचुंबी इमारतों को इन्होंने देखा, गगन चूमते हुए मतलब आकाश को छूते हुए इमारतों को इन्होंने देखा। और जब उन्होंने IIT में एडमिशन लिया, इन IIT व्हाट हैपेंड, इन IIT क्या था, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स एंड प्रोफेसर दे बोथ आर कन्वर्स ईच अदर इन इंग्लिश। क्या कर रहे थे, सारे प्रोफेसर, सारे स्टूडेंट इंग्लिश में बात करते थे और इनकी अच्छी गुड़गुले की इंग्लिश क्या थी, बहुत ही पुअर थी। वाई, बिकॉज हिज एंटायर एजुकेशन इज इन मराठी मीडियम एंड ही वॉज वेरी वीक इन इंग्लिश। मीन्स जो बात करना है, इंग्लिश जो बोलना है, क्यों कोई बच्चा जो वर्नाकुलर मीडियम का बच्चा आता है वो पढ़ाई में बहुत अच्छा होता है, बट बिकॉज ऑफ द लैंग्वेज प्रॉब्लम sometime he dominated by other students. So same story here going on कि Achit Godbole also very talented student, but when he reached in IIT he saw there all students and all professors are conversing in English each other. He was from Marathi medium, that's why he is speaking whatever the language he is spoken English was very weak. Not only did I have very weak vocabulary, जबकि इनकी vocabulary भी जो थी बहुत वीक थी, लेकिन इनका प्रोनाउंसिएशन भी क्या था, ये बहुत ही टेरिबल था। प्रोनाउंसिएशन आप देखते हो स्टेट वाइज, लैंग्वेज वाइज इंसान के जो है प्रोनाउंसिएशन बदल जाते हैं। मे बी द पर्सन बिलोंग्स टू द नॉर्थ साइड, her or his pronunciation is different. The student person belongs to the south side
her or his pronunciation is different, maybe east side, maybe west side. Each and every side means our language also affect on our pronunciation. Same here, this effect we can see on Achyut Godbole also. And he is what, he is very poor, he told, because he is from the Marathi medium, so his pronunciation also very terrible. And his construction of English sentences, whatever sentence he is making or making the sentence, that also is very awkward. Due to all this, I was feeling quite lonely and terrified in Mumbai in general and IIT in particular. I had developed an inferiority complex and wanted to run away from IIT even Mumbai. So ये जो थी फीलिंग्स जो थी, इनका मराठी मीडियम से पढ़ना, इनकी इंग्लिश वीक थी, इनका प्रोनाउंसिएशन थोड़ा ऑकवर्ड था और ये सेंटेंस नहीं फॉर्म कर पाते थे बराबर, इसकी वजह से क्या हो गया, इन सभी कारणों से ही वाज फीलिंग क्वाइट लोनली, अकेला पानी ने महसूस होने लगा. एंड टेरिबल इन मुंबई इन जनरल, हाँ, ही फील बहुत टेरिबल, इन्हें भयानक लगने लगा, इन्हें अच्छा नहीं लगने लगा, टेरिबल मतलब जरा डर लगने लगा मुंबई में रहने से. ही फील टेरिबल इन मुंबई इन जनरल एंड इन आईआईटी पर्टिकुलर, क्योंकि आईआईटी में क्या था, यही इनका जो है पूरा कैंपस था आईआईटी का. पवई आईआईटी आप गए होंगे, वहीं पे पढ़ाई किए हैं, तो वहाँ पर सभी इंग्लिश में बोल रहे थे, तो इन्हें थोड़ा क्या लग रहा था, टेरिबल लग रहा था. आई हैड डेवलप्ड एन inferiority complex and wanted to run away from IIT and even Mumbai. तो इनके मन में क्या हो गया है, inferiority complex डेवलप हो गया, और जिसकी वजह से क्या करना चाहते थे, मुंबई या हम कहें कि डायरेक्ट IIT से, या ऐसा कर सकते थे पढ़ाई छोड़ के यहाँ से वापस अपने गाँव आया था सोलापुर रिटर्न होना चाहते थे. One day I was sitting at my mess table in the hostel sipping tea when a senior guy came and sat on the chair next to me or adjacent to me. तो one day what happened? One day he was sitting in a mess. Mess में क्या कर रहे थे? बैठे हुए थे. Sipping the tea, चाय पी रहे थे. That time one senior guys came. उनका जो क्लासमेट था, सीनियर क्लासमेट मतलब उनके क्लास वाला, बट दिस क्लासमेट मीन्स सीनियर क्लासमेट, मीन्स उनसे जो बड़ी क्लास में, जैसे आप 12th में हैं तो आप फर्स्ट ईयर में जाएंगे बीकॉम, या सेकेंड ईयर में जाएंगे, आप ही इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो आप सेकेंड ईयर में जाएंगे, तो फर्स्ट ईयर वाले जो है वो जूनियर रहेंगे और सेकेंड ईयर वाले उनके क्या रहेंगे, सीनियर गाइस रहेंगे. तो सीनियर गाइस केम टू सिट ऑन द चेयर एडजेसेंट, तो यहाँ पर सीनियर गाइस आता, उनके बगल में एडजस्ट करके बैठ जाता. ही वॉज ए कॉन्वेंट एजुकेटेड गाइस with fairly sophisticated English, at least spoken or colloquial, casual, informal English. So that person is educated from what? Convent school. आप कॉन्वेंट स्कूल देखते हैं, कैथोलिक स्कूल को हम लोग कॉन्वेंट स्कूल बोलते हैं. एंड फेयरली what? Sophisticated इंग्लिश एटलीस्ट स्पोकन, वो क्या था, इंग्लिश उसकी क्या थी, बहुत ही क्लासी थी, बहुत ही हाई फाई इंग्लिश थी उसकी. और कोलिक्वल मीन्स इनफॉर्मल थी उनकी इंग्लिश, मतलब एकदम कैजुअल, एकदम फटाफट मलाई के जैसे बोलते हैं ना, वी नीड हाउ विच टाइप ऑफ, हमको जब भी नौकरी मिलने लगती तो बोलते हैं जिसकी इंग्लिश फ्लुएंट हो, तो उसकी इंग्लिश कैसी थी, क्लासी थी एंड कैजुअल इंग्लिश थी. ही वॉज ए बिट एरोगेंट, और वो क्या था, जरा रूड था, इनको नीचा दिखाना चाहता था, रूड भी था. ही वॉज ए बिट एरोगेंट एंड वॉन्टेड टू पुल माई लेग. वो क्या करना चाहता था, वो थोड़ा एरोगेंट था और इनकी इंसल्ट करना चाहता था. टू पुल माई लेग मीन्स इंसल्ट करना, इन्हें नीचा दिखाना चाहता था. ही वॉन्टेड टू pull his leg. He tries to engage in some conversation with me and started pointing out error in just about every sentence or everything that I said. He start the conversation with Achyut Godbole, and when Achyut Godbole is giving answer, started giving answer in English, so that person what he tried to find out the mistake. मीन्स ईच एंड एवरी सेंटेंस को क्या कर रहा था, पॉइंट आउट कर रहा था, उनके मिस्टेक्स को, उनके एरर्स को उनको बार बार बता रहा था. आफ्टर 5 minutes ही वॉकड अवे आफ्टर इंसल्टिंग मीन्स नियर अबाउट 5 minutes उसने कन्वर्सेशन किया अच्युत गोडबोले के साथ. एंड आफ्टरवर्ड्स व्हाट, उसने इनका इंसल्ट किया. इंसल्ट करने के बाद वह वहाँ से चला. आई फेल्ट एक्सट्रीमली ह्यूमिलिएटेड. ह्यूमिलिएटेड मीन्स इंसल्टेड एंड अपसेट. As it is, I was feeling quite depressed
and diffident. And this incident was the last straw. I was almost broken. I felt out place there and literally wanted to run away to Solapur that very moment. However, it was only my self-esteem. Self-esteem means self-respect which stopped me. I felt extremely humiliated. कोई भी रहेगा यहाँ पर, उसको कैसी फीलिंग होगी कि मुझे ह्यूमिलेट कर रहा, मुझे इंसल्ट कर रहा, वो क्या हो जाएगा, अपसेट हो जाएगा. लेकिन एक थोड़ी सी इंग्लिश नहीं आ रही, आप ऑल सब्जेक्ट में अच्छे हो, एक इंग्लिश नहीं आ रही है, वो सीख जाओगे आप, उसकी वजह से आपको अपसेट नहीं होना चाहिए. चैप्टर आपको क्यों दिए गए? सी चिल्ड्रंस इन आवर क्लास, सम स्टूडेंट्स आर कॉन्वेंट स्कूल, उनकी इंग्लिश बहुत अच्छी होगी. सम स्टूडेंट फ्रॉम वर्नाकुलर मीडियम, मे बी फ्रॉम हिंदी, मे बी फ्रॉम इंग्लिश, मे बी फ्रॉम गुजराती, सो ऑन मेनी मोर मीडियम. तो उनकी इंग्लिश जो है कॉन्वेंट वालों के जैसे नहीं होगी. बट अदर सब्जेक्ट में वो क्या होंगे, इनसे बहुत आगे होंगे. डिसिप्लिन में, ग्रामर में, मैथ्स में, अदर सब्जेक्ट में बहुत आगे होंगे. तो इन छोटी सी बातों को लेकर के मीन्स ईच एंड एवरी ह्यूमन बीइंग इज नॉट एक्सीलेंट इन ऑल सब्जेक्ट. कोई भी बच्चा जो है सब सब्जेक्ट में एक्सीलेंट नहीं हो सकता. कोई खेलने में अच्छा है, कोई कल्चरल प्रोग्राम में अच्छा है, कोई पढ़ाई में अच्छा है, किसी का कोई सब्जेक्ट अच्छा है. तो इस वजह से हमें क्या नहीं होना चाहिए, हमें अपसेट नहीं होना चाहिए था. लेकिन यहाँ एप्टीट्यूड बोले से जब उस लड़के ने, जो उनका सीनियर गाइस था, जो कॉन्वेंट में पढ़ा हुआ था, उसने क्या किया, 5 मिनट तक बातें की उनकी, और इन्होंने जब आंसर दिया इंग्लिश में, तो उसने क्या किया, ईच एंड एवरी सेंटेंस में, ईच एंड एवरी वर्ड में इनकी प्रोनाउंसिएशन को रॉन्ग बताया, इनके सेंटेंस में एरर दिखाया, और इनका इंसल्ट करके, लेग पुलिंग करके चला गया. और इस वजह से इनको क्या हो गया, बहुत ही शर्मिंदगी महसूस हुई. ही फेल्ड व्हाट, इंसल्टेड, and he want to what, he become very upset. As is it, I was feeling quite depressed and diffident. अब इन्हें क्या लगने लगा, he feel what, इनके अंदर कैसी फीलिंग आ गई, इनसिक्योर की फीलिंग आ गई, और ये डिप्रेस हो गए, इनकी इनसिक्योर की फीलिंग आ गई. एंड दिस इंसिडेंट वॉज द लास्ट स्ट्रा. अब इनके लिए क्या था, ये लास्ट इंसिडेंट था कि अब बियरेबल नहीं है, लिमिट क्रॉस हो रही है, अब मुझे यहाँ से क्या करना चाहिए, चले जाना चाहिए. आई वॉज ऑलमोस्ट ब्रोकन, और ये क्या हो गया, पूरी तरह से टूट गए. आई फेल्ट out of place there and literally wanted to run away to Solapur. And that's why what he felt कि इतना इंसल्ट हो गई, बहुत इंसल्ट हो गई, मुझे इंग्लिश नहीं आती, उसकी वजह से मुझे बार बार इंसल्टेड होना पड़ रहा है. तो he feel what, he gone in depression, he feel too insecure, and that's why he totally broke and he want to run away. Where? He want to run away to Solapur. That very moment, however, I was only my self-esteem, कि वह एक ही क्षण था जब इनकी self-esteem ने, इनका self-respect ने क्या किया, इन्हें रोक लिया. I stopped me. Suddenly a feeling of determination, strength of mind or willpower जो था उनका, suddenly a feeling of determination and strength come over me and gripped me. तो अचानक क्या हो गई, सडनली अ फीलिंग ऑफ डिटर्मिनेशन, इनका विल पावर आया, एंड स्ट्रेंथ कम ओवर मी ग्रिप्ड. जो इनका स्ट्रेंथ था, जो इनके अंदर की शक्ति थी, उसने इन्हें क्या कर दिया, इन्हें रैप्ट कर लिया, यहाँ पर उन्हें क्या किया, रोक के रख लिया. सडनली अचानक इनके मन में, इनके विल पावर ने ऐसा महसूस किया, इनके अंदर से ऐसा हुआ कि ही हैड लॉट ऑफ विल पावर. ही बिकम वेरी काम एंड ही वहीं पे ये रुक गए. ही स्टैंड ओवर देयर. डिस्पाइट हेलिंग फ्रॉम सोलापुर, इफ आई कुड बी अ रैंक होल्डर इन द स्कूल, college and IIT with many years in mathematics, there must be something right with me. He is thinking what, his willpower stopped him and he started thinking कि मैं सोलापुर का रह के भी I am a rank holder in school, in college and in IIT also I got what, many awards in mathematics. There must be something in me. There must be something right with me. Why should I give up? मैं क्यों हार मान लूँ? And that too for a silly and small thing like English. तो मैं क्यों हार मान लूँ? क्यों सोलापुर वापस लौट जाऊँ? Why should I return to सोलापुर? So he say कि सिर्फ एक छोटी सी इंग्लिश की वजह से मैं सोलापुर चला जाऊँ? नहीं.
I was not to give up anymore and I was determined to fight back. So he is thinking what? He was not give up anymore and he was determined. What he taken determined? What he taken decision? What he determined? He taken decision to fight back. As I climbed the stair of my hostel room, my plan was ready in my mind. Normally, most of us who are educated in vernacular language such as Marathi think in Marathi before speaking in English, translate it in English and then somehow try to speak out these translated English sentence in an extremely awkward fashion. So as I climbed to stair, when he climbed his hostel stair, so he had a plan in his mind. Ki normally many more students are taking education in vernacular language, someone in Marathi, someone in Hindi. So the student, those are taken education in vernacular language, what is the mentality of that student? They are thinking in Marathi. And that he translate before speaking that in Marathi first of all he think and that he translate in English, then afterward he try to speak in English. So what he say कि out of these translation English sentences is extremely awkward. तो जब हम क्या करते हैं कि हम वर्नाकुलर मीडियम के बच्चे मे बी वी आर फ्रॉम हिंदी और मराठी मीडियम, फर्स्ट ऑफ ऑल एनीबडी टॉक टू अस, सो व्हाट वी do, first of all we think in Hindi or Marathi, then after we translate that sentence in English and then we speak out. So ये जो हम काम करते हैं तो इसी वजह से हमारी जो इंग्लिश क्या हो जाती है, थोड़ी awkward हो जाती है. I had decided that I would do nothing of this sort. Short means kind, कि मैंने अब डिसाइड कर लिया कि I will not do this type of any work. I wanted to achieve excellent. This urge means wish. दिस अर्ज की जो हमारे अंदर की इच्छा थी, जो अर्ज था, हमारी जो विश थी, दिस अर्ज टू एक्सेल in anything that you try to do has been with me since the childhood. What he said, now he decided he will not do like this type of any work. He wanted to achieve the excellent in English. So this desire to become excellent or to speak excellent English, he tried what? He tried to do has been with since the childhood. What he say कि जो इनकी इच्छा थी, ऐसी इच्छा उन्हें हर चीज़ में अच्छा करने की बचपन से ही थी. So he want to try to do what? He want to try to speak excellent English. Whether I would succeed in this or not, I always set my aim high. In this case too, I wanted to speak excellent, एलिगेंट एंड फ्लुएंट इंग्लिश. तो ये क्या किया इन्होंने डिसाइड किया कि मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा, यहाँ से जाने वाला नहीं हूँ. जो भागने वाले थे डर गए थे, मैं डरने वाला नहीं हूँ, मैं जाने वाला नहीं हूँ. मैं क्या करूँगा, मैं इंग्लिश में भी एक्सीलेंट अचीव करूँगा. तो ये जो इनकी इच्छा थी, बचपन से ही थी, किसी भी चीज़ में सोचते थे कि मैं क्या करूँगा, एक्सीलेंट करूँगा, तो वो करते थे. तो ही टोल्ड व्हाट ही इज़ थिंकिंग, व्हाट ही थॉट कि आई विल ट्राई, मे बी आई सक्सीड और नॉट, बट आई ट्राई. So what he done, he taken his aim, and in this case too also he started this, and he wanted to speak which type of English. So by doing hard work, by doing excellent, he wanted to speak excellent and elegant and fluent English. The first time I did was to start reading English newspapers and English novel. First what he started to improve English, he started reading English newspaper and English novel. I studied etymology and phonetic and studied the root of the word and how to pronounce them. I used to stand in front of the mirror and practice speaking, realizing my mistakes and correcting them myself all the time, and improving day by day. What he started, first of all he started reading the English newspaper and novel, then afterwards he started studying etymology and phonetic. Phonetic already you studied in the lower class. Phonetic words होते an, am, it, in, I am, like that words are what? Phonetic words. And etymology, after explanation of this paragraph I will explain what is the etymology in short way. Okay, so he started what? He started study the book आती है इसके ऊपर, etymology और phonetic के ऊपर book आती है. He started the studying, and the etymology and phonetic is what? It is the root of the English
वर्ड्स प्रोनाउंसिएशन. He used to stand in front of the mirror. अभी क्या करने लगे? He used what? He used to stand in front of the mirror and try to speak. Means he start the English speaking practice and realizing कि मैं इंग्लिश बोल रहा हूँ, and he realized what is his mistake while they speaking, and that mistake he tried to correct. So he started what? Correcting his mistake all time and improvising एंड इम्प्रूविंग डे बाय डे. सो ऑल टाइम क्या करने लगे? अपनी मिस्टेक मिरर के सामने खड़े होकर बोलते थे, अपनी मिस्टेक ढूंढते थे, और ऑल टाइम वे डे बाय डे अपनी मिस्टेक को क्या करने लगे? इम्प्रूव करने लगे. नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू व्हाट इज द etymology. So let's study etymology. Etymology means what? It is the one book. Through this book, this is the one system of English. I'm not going to deeply. It's a system of English. There we have to what? Get the knowledge how to pronounce the word and what is the meaning of words. So here see, mono means what? एक. by means दो. poly means दो से ज़्यादा. वर्ड्स को हम क्या बोलते हैं? poly. So according to Deci, gamy means एक वर्ड दिया मैंने etymology. gamy का मतलब होता है शादी. So here what I written here? मोनोगैमी means एक शादी में मैं गया. सपोज हम घूमने जा रहे हैं, योर फ्रेंड आस्क कहाँ जा रहे हो, तो आप क्या बोलोगे? आई एम गोइंग टू वन मोनोगैमी, कि मैं एक शादी अटेंड करने के लिए जा रहा हूँ. आई एम गोइंग टू अटेंड वन मोनोगैमी. देन व्हाट? इफ़ यू आर गोइंग टू दो शादी उसी दिन आपको अटेंड करना है, देन व्हाट यू से? आई एम गोइंग टू अटेंड बाईगैमी मीन्स दो शादियों में जा रहा हूँ, दो शादियाँ मुझे अटेंड करनी है. देन व्हेन यू आर गोइंग टू अटेंड मोर देन टू, then what you have to say? I am going to attend how many gamy? polygamy means दो से ज़्यादा शादियों में मैं जा रहा हूँ. और we can say already I told mono means एक and poly means दो से ज़्यादा, by means दो. So same way here one words are over there, bilingual, bicep, binocular. So ये सब words क्या होते हैं? ये जो etymology के word होते हैं उन्हें मिला करके ये सब words बनते हैं. जैसे bicep बना bilingual, biceps, बाइनोकुलर. क्या बना हम बाय से? बिलिंगुअल, बाइसेप एंड बाइनोकुलर. इट टुक अबाउट 9 to 10 months, by which time I started feeling quite confidence about speaking in English at length with anybody. My fear had vanished, means disappeared हो गया, गायब हो गया मेरा जो डर था. And I started feeling at home in my hostel. I took about 9 to 10 months. by which time I started feeling quite confident. तो इन्होंने क्या किया? He started the learning the English to speak excellent. It took how many time? It took 9 to 10 it took 9 to 10 months. And then afterwards what? He feel confidence about speaking English at length with anybody. So now what happened? Now his fear regarding English is vanished and he started feeling कि he is living where? He is staying home in his hostel. In my future career, out of 32 years in information technology field, I was a chief executive or managing director or head of software company with thousands of software engineer worldwide. Now what he say? First of all what? He is fearing with English. 9 से 10 महीनों में इन्होंने इंग्लिश को सीख लिया. अब उन्हें क्या हो गया? पूरा कॉन्फिडेंस हो गया. जो डर था उनके अंदर इंग्लिश के प्रति वो क्या हो गया? वैनिश हो गया, गायब हो गया. अब उन्हें हॉस्टल कैसा लगने लगा? घर जैसा लगने लगा. इन फ्यूचर कैरियर, अब आगे के बारे में बता रहे. आउट ऑफ 32 ईयर्स उन्होंने क्या किया? आउट ऑफ 32 ईयर्स जो उन्होंने फ्यूचर में जो कैरियर था उनका फ्यूचर का, उसमें 32 ईयर्स में क्या हो गया? उन्हें इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के फील्ड में उन्होंने काम किया 32 ईयर्स. और इन 32 ईयर्स ही वॉज द चीफ एग्जीक्यूटिव और मैनेजिंग डायरेक्टर और हेड ऑफ सॉफ्टवेयर कंपनी विथ 1000 ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियर वर्ल्ड वाइड. पूरे वर्ल्ड में क्या हो गया? 32 ईयर्स के करियर में उन्होंने किस पोस्ट पे काम किया? उन्होंने मोस्टली चीफ एग्जीक्यूटिव, मैनेजिंग डायरेक्टर और हेड ऑफ सॉफ्टवेयर के रूप में उन्होंने 1000 ऑफ कंपनीज में पूरे वर्ल्ड में काम किया. ड्यूरिंग द पीरियड आई हैड टू गो सेवरल प्रेजेंटेशन और नेगोटिएट मेनी कॉन्ट्रैक्ट with the CEOs, directors or vice president. VPS means vice president in US, UK or Australia. I was absolutely at ease at that time. A negotiation means that is discussion. We can say a discussion, or when meeting we arrange, so there we have to do discussion. And when we are going to in foreign country, we have to discuss in which language? In English language. So that he
ट्राई टू कोरिलेट इंग्लिश एंड हियर कि कैसा इंग्लिश का जब उनकी इंग्लिश अच्छी हो गई तो कैसा उनका कॉन्फिडेंस हुआ, और उन्हें अपने लाइफ में 32 ईयर्स के जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के फील्ड में उन्होंने काम किया, तो वहाँ बड़ी बड़ी पोस्ट पे थे, उसके लिए उन्होंने क्या होगा कि आउट ऑफ कंट्री जाना पड़ा। तो वहाँ पर क्या उन्होंने नेगोटिएट किया, उन्होंने ड्यूरिंग दिस पीरियड व्हेन ही वाज ऑन द पोस्ट ऑफ चीफ एग्जीक्यूटिव मैनेजर डायरेक्टर एंड सॉफ्टवेयर इंजीनियर पोस्ट पे थे, तो एट दैट टाइम व्हाट ही डन, ही हैड टू गिव सेवरल प्रेजेंटेशन और नेगोटिएट मेनी कॉन्ट्रैक्ट विद द CEOs, डायरेक्टर्स और वाइस प्रेसिडेंट इन US, UK और ऑस्ट्रेलिया। आई वॉज एब्सोल्युटली एट ईज, और ये जो नेगोटिएट करते समय क्या थे, एब्सोल्युटली एकदम आराम से वो बात करते थे, वेरी ईजली ही टॉक विद द अदर पर्सन। इट इज़ ओनली ड्यू टू द एफर्ट एट IIT दैट आई टुक साइन कॉन्ट्रैक्ट worth millions of dollars worldwide and also run large global software companies. So it was why happened. It is happened because he taken his willpower in given him a strength कि आप इंग्लिश बोल सकते हैं। He taken lot of effort to speak English, इनकी इंग्लिश फ्लुएंट हो गई, और इस वजह से क्या किया उन्होंने, ईजिली उन्होंने ढेर सारी मीटिंग्स वाइस प्रेसिडेंट के साथ में, US में मेनी मोर हाई क्वालिटी इंग्लिश स्पीकर्स के साथ में उन्होंने मीटिंग्स अटेंड किए और कन्वर्स किया, और उसको मीटिंग अटेंड करते समय उनके साथ कन्वर्सेशन करते समय वो क्या थे, एकदम ईजिली ही कैन एबल टू टॉक। एंड इट इज़ वॉट बिकॉज ये उन्होंने IIT में इतना एफर्ट लिया, और इसी वजह से उन्होंने क्या किया, साइन किए कैसे, कई कॉन्ट्रैक्ट, दैट कॉन्ट्रैक्ट है वर्थ वॉट मिलियंस ऑफ डॉलर वर्थ जो कॉन्ट्रैक्ट के थे, दैट ही साइंड एंड ऑल्सो लर्न and also he learned how to run the large global software companies. So till here we will stop this lecture. In next lecture we will learn remaining part of this lesson. Thank you children.